A very good morning to all you students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the first chapter of part A of volume 1, that is an accounting for not-for-profit organization. In this chapter, firstly, we discussed what is not-for-profit organization, what are the features of the not-for-profit organization, as well as we discussed which types of the statement are prepared under the not-for-profit organization, that is in receipts and payment account, income and expenditure account, as well as the balance sheet of not-for-profit organization. As you know very well, when we are talking about the preparation of the financial statement of not-for-profit organization, and we can see that there are lots of adjustments are required to prepare the financial statement of NPO, like a receipts and payment, as well as income and expenditure account, as well as at the time of the preparation of balance sheet. So in the first few videos, we discussed the first and very important adjustment related to this chapter, that is an subscription. As you know very well, subscription is the most important source of revenue for any kind of the NPOs, as well as how we can show the subscription in the income and expenditure account, as well as the balance sheet, as well as we discuss a lots of the practical problem on the subscription. So now we have moved to the next few adjustments which are related to this chapter, like life membership fees, like a donation, and you can see that there are basically two types of the donation, that is a general donation and a specific donation. So how we show the donation and life membership fees in the financial statement of sole proprietorship. Let's be revised. Firstly, those two concepts, and thereafter we will move to the next adjustment, which are very important to solve the practical questions given in the examination. So without creating any delay, let's discuss the new topic of today's video, that is in life membership fees, general and specific donation, as well as the accounting treatment of a specific fund. Okay, so let's go. Now we have to move to the next adjustment of not-for-profit organization, that is in life membership fees. So the next adjustment after the subscription, let's discuss about the life membership fees. What is in life membership fees? You know very well. When any member prefer to pay all the fees in lump sum at one time for the lifetime, it will be known as a life membership fees. यानी जब कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को उसका मेंबर उस एनपीओ का लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए एक साथ फी कर देता है, वन टाइम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस. सो व्हाट इज अ लाइफ मेंबरशिप फीस? Fee paid by member of NPO to become member of such NPO at one time, to become a member of such NPO for lifetime, in lump sum. ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है कि जब कोई मेंबर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए, किसी एनपीओ का मेंबर बनने के लिए जो उसको फीस देनी है, एनुअली देनी है, वो एनुअली ना देकर मैं एक साथ पूरे लाइफ का देना, जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं एनपीओ का मेंबर रहूंगा, उसे लाइफ टाइम फी पे कर दी, उसे बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस. और इसे हम कहां शो करते हैं? इट विल बी शोन इन द नंबर 1, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, दैट्स व्हाई इट विल बी शोन इन द
पहले तो शो होती है डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा शो होती है ये आपके लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बिकॉज ऑफ इट इज एन कैपिटल रिसिप्ट एंड यू नो वेरी वेल कैपिटल रिसिप्ट इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें वो है डोनेशन की, बिकॉज डोनेशन पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं यू नो वेरी वेल, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। डोनेशन को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन होता है। सो डोनेशन को लेकर क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 3, दैट इज एन डोनेशन। व्हाट इज एन डोनेशन? A charitable institution may receive donation occasionally for the benefit of the institution. It means amount received by organization for benefit of institution। यानी जब कोई पैसा ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करता है फ्रॉम एनीवन फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इट विल बी नोन एज एन डोनेशन, एंड सच डोनेशन विल बी अपीयर इन द डेबिट साइड ऑफ द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये तो क्लियर है, इसे हम कहां शो करते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बट दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द डोनेशन, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डोनेशन? टू टाइप्स, general donation and specific donation. What is general donation? You know very well, such donation may be utilized for the general purpose. याद रखिएगा, such donation will be utilized, such donation will be utilized for जनरल पर्पस। यानी जब जनरल डोनेशन किसे कहते हैं, जो डोनेशन यानी जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन को मिला है उसके बेनिफिट के लिए, उस किसी वर्क के लिए, और उस पैसे को हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सच डोनेशन विल बी यूटिलाइज फॉर जनरल पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इट विल बी नोन एज एन जनरल डोनेशन। एंड द स्पेसिफिक डोनेशन मीन्स the amount of the value या donation will be utilized for the specific purpose। यानी donation received is to be utilized for specific purpose। यानी जनरल डोनेशन किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ द डोनेशन विच आर यूटिलाइज फॉर द जनरल पर्पस एंड द डोनेशन विच आर यूटिलाइज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। तो जो डोनेशन हम यूटिलाइज करते हैं किस पर्पस के लिए, जनरल पर्पस के लिए, उसे हम जनरल डोनेशन कहते हैं। और जिस पैसे को हम यूटिलाइज करते हैं किस लिए, फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, उसे हम लोग स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। और इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, सच डोनेशन विल बी नोन एज एन स्पेसिफिक डोनेशन, क्योंकि उसमें उसके साथ पर्पस स्पेसिफाइड होता है। बट जनरल डोनेशन के साथ पर्पस स्पेसिफाइड नहीं होता। इसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। एंड जनरल डोनेशन विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वेयर एज स्पेसिफिक डोनेशन विल बी शोन इन द एसेट लायबिलिटी साइड ऑफ liabilities side of balance sheet. So please note down in your copy properly all these things. So the next topic of today's video is the accounting treatment of a specific fund. What is a specific fund? As you know very well, if any fund are created for the specific purpose, if any fund are created for the specific purpose, which will be known as the specific fund. Is that clear?
So in short word, we can say that any fund which are created for meeting specific purpose known as specific fund. Okay, so these are the basic information related to the specific fund. Sir, give me the one example. Okay, so मैं आपको एक example दे देता हूँ. Suppose if we are talking about in the NPO when we create a tournament fund. एक NPO है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड NPO है, जो स्पोर्ट्स को मोटिवेट करता है, स्पोर्ट्स को अपने जो मेंबर्स हैं उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. तो वो अपने NPO में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए टूर्नामेंट फंड क्रिएट करता है. एंड सच टूर्नामेंट फंड विल बी नोन एज एन स्पेसिफिक फंड. एंड व्हेनेवर वो NPO जब भी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगा तो वो इस फंड से उस एक्सपेंस को मैनेज करेगा. एंड यू नो वेरी वेल, जब भी वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगा तो उसको कहीं डोनेशन भी मिलेगा. ध्यान से सोचिएगा आप लोग, टूर्नामेंट फंड क्यों बनाया उस NPO ने? ताकि वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सके. यानी टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो इसी फंड से डील होंगे. तो पहले फंड बनाया, एट द टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट उसने एक्सपेंस बियर किया. टूर्नामेंट को मोटिवेट करने के लिए यू नो वेरी वेल डिफरेंट NPOs क्या देते हैं? डोनेशन प्रोवाइड करते हैं. तो वो डोनेशन भी इस टूर्नामेंट फंड को क्या देंगे? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे. ओके, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नो वेरी वेल, मोस्ट ऑफ द NPO जो भी फंड क्रिएट करते हैं उस फंड को अपने पास NPO में कैश में रिटेन करके नहीं रखते. लिसन वेरी केयरफुली. इफ एनी NPO create any kind of the specific reserve, so such reserve or fund cannot be retained by the reputed NPO in cash form. वो उस फंड को क्या कर देते हैं? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं. सो आप देख रहे हो एक स्पेसिफिक फंड से कितनी सारी चीजें ट्रांजैक्ट हो रही हैं, कितनी सारी चीजें इनकर्ड हो रही हैं. सो यू कैन सी दैट टूर्नामेंट फंड में क्या होता है? डोनेशन मिलता है एट द टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट. टूर्नामेंट फंड से हम क्या करते हैं? टूर्नामेंट एक्सपेंस बियर करते हैं. अगर टूर्नामेंट का कोई एक्सपेंस है तो उसको बियर करते हैं. टूर्नामेंट फंड को हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं. कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? यू नो वेरी वेल, कैश में टूर्नामेंट को हम नहीं रखते. हम उस फंड को कहीं ना कहीं किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. तो वो बन जाता है आपका टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट. अब ध्यान से देखना, अगर हमने टूर्नामेंट फंड को इन्वेस्ट कर दिया और बन गया टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो उस इन्वेस्टमेंट पे हमें क्या मिलेगा? वी विल रिसीव द इंटरेस्ट ऑन सच टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट. सो यू कैन सी दैट एक आइटम से रिलेटेड कई रिलेटेड आइटम्स अपने आप क्या होते हैं? अकाउंटिंग में ऑकर हो जाते हैं. जैसे कि डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट. सो एक बेसिक आइटम है विच इज नोन एज एन स्पेसिफिक फंड, and the related items which are related to the specific fund. The question is how we will show these items in the financial statement of NPO. The question is how we will show these items. हम ये सारे आइटम को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी NPO में कैसे शो करेंगे? It is a very important and very serious thing. And in the examination 90% श्योर होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा कि हम कैसे स्पेसिफिक फंड को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी NPO के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेंगे. सो आज का हमारा टॉपिक यही है बेसिकली.
कि how we will show the specific fund and its related item like a donation, like a tournament expense, like a tournament fund investment and interest on tournament fund investment in the financial statement in the receipts and payment, income and expenditure account and balance sheet of not for profit organization. Okay, so let's we move to the basic and very important point of today's video. So next we are talking about the presentation of a specific fund in the financial statement of NPO. So you can see that if we are talking about the balance sheet of NPO, so tournament fund will be shown in the liability side of the balance sheet. Tournament fund will be shown in the liability side of balance sheet. And if there is any kind of donation received regarding the tournament fund, तो उसको हम ऐड कर देते हैं. अगर कोई भी एक्सपेंस होता है रिलेटेड टू द टूर्नामेंट, एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट, तो उसको हम क्या कर देते हैं, उस टूर्नामेंट फंड में से माइनस कर देते हैं. और अगर हमने उस टूर्नामेंट को क्या कर दिया, टूर्नामेंट फंड को इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हमारा क्या बन गया, एसेट्स. सो इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट. और कभी कभी क्वेश्चन में जो भी इंटरेस्ट मिलता है ऑन द टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, सो इंटरेस्ट इज कहां शो करेंगे, विल बी इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट विल बी एडेड टू द टूर्नामेंट फंड. ये टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं होगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग थिंग इज टूर्नामेंट फंड का जो टोटल इंटरेस्ट है, इट विल बी एडेड टू द टूर्नामेंट फंड, बट द एक्रूड इंटरेस्ट मतलब कोई इंटरेस्ट जो ड्यू हो चुका है, मिला नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में ऐड कर सकते हैं. एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, उसको हम ऐड कर सकते हैं. सो इस तरह से हम अपनी बैलेंस शीट में स्पेसिफिक फंड, जैसे कि आपने देखा एग्जांपल दैट इज एन टूर्नामेंट फंड, को हम शो कर सकते हैं. सो अगर क्वेश्चन में एक एग्जांपल दिया हो, सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल इज एग्जांपल इसमें दिया हुआ है एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल, दैट इज एन प्राइस फंड. चलिए प्राइस फंड को हम टूर्नामेंट फंड कर देते हैं. टूर्नामेंट फंड, ये सब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होगा. टूर्नामेंट फंड ₹50,000. ओके. और डोनेशन रिसीव्ड या रिसिप्ट्स ऑन टूर्नामेंट फंड अगेंस्ट द टूर्नामेंट फंड, दैट इज 10,000. एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट पे हमने खर्चा किया 30,000. और आपको याद होना चाहिए जितना भी हमारा टूर्नामेंट फंड होगा वही हमारी टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी होगा. टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया टोटल वैल्यू, और उस टूर्नामेंट फंड पे हमें इंटरेस्ट मिला, इस पे हम 10% आगे लगा दे. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दे क्वेश्चन. 50,000 का 10% के हिसाब से हमने इन्वेस्ट किया है, यानी 50,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया और ये एक्सपेक्ट किया कि हमें 10% इंटरेस्ट मिलेगा. और इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज एन 4,000. सो जब इस आइटम को हम अपने बैलेंस शीट में शो करेंगे, याद रखिएगा कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट में, तो सबसे पहले टूर्नामेंट फंड कितना है 50,000. ओके.
डोनेशन कितना रिसीव हुआ 10,000, एक्सपेंस कितना हुआ 30,000 और टोटल इंटरेस्ट कितना बनता 50,000 का 10%, दैट इज इन 5,000। आप कंफ्यूज मत होइएगा, जिसमें से सिर्फ 4,000 मिला है, स्टिल 1,000 आर आउटस्टैंडिंग और एक्रूड। और इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000, एक्रूड कितना है, you can see that only 4,000 interest received against tournament fund investment, but the total interest is 5,000. So 1,000 is accrued. So 51,000 will be shown in the asset side. That is 51,000. In the liability side, we just show the total interest. 4,000 जो मिल गया है, 1,000 जो अभी still outstanding है. Okay. So 60, 30 या 30, 35. सो इस तरह से आप स्पेसिफिक फंड को अपने बैलेंस शीट में सोल प्रोप्राइटर के बैलेंस शीट में शो करेंगे। ओके, एंड आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। सो प्लीज नोट डाउन दीज थिंग इन योर कॉपी प्रॉपरली बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द योर एग्जामिनेशन। ओके, let's we take some question related to this topic because it is a very important topic. Let's we move to the question which are related to the accounting treatment of specific fund to create a better understanding regarding this topic. Okay. Please note down the question firstly. The question is, how will the following balances shown in balance sheet of a क्लब। एक क्लब है, उस क्लब में कुछ बैलेंसेस दिए हैं आपको और आपसे क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दैट कि प्लीज शो दीज आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ क्लब एंड द आइटम्स आर मैच फंड रुपीज 75,000, interest on match fund rupees 99,000, distribution of the prize into winner of the match, यानी आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मैच के लिए, ठीक है, 3,000 का ही बस प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक्सपेंस रिलेटेड टू मैच, जो आपने मैच ऑर्गेनाइज किया उसके लिए एक्सपेंस था आपका 10,500। डोनेशन फॉर मैच फंड, जो मैच फंड हुआ उसके लिए, मैच जो फंड बनाया गया उसके लिए डोनेशन मिला है 30,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, आपने मैच फंड के पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया था, उस पे आपको इंटरेस्ट मिला है 7,500। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ परमानेंट फंड, एक और फंड है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ परमानेंट फंड कितना है 12,000। परमानेंट फंड आपका है परमानेंट फंड है 1,20,000 और लास्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफ परमानेंट फंड। 1,20,000। हमने मैच फंड को इन्वेस्ट नहीं किया है क्या?
किया होगा, है इन्वेस्टमेंट ऑफ, ये इंटरेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऑफ माय फंड. So these are the information 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 information are given in this question, and with the help of these information you have to show following item in the financial statement of or in the balance sheet of club. Okay, so now we are moving to the solution of this question. If we are preparing the balance sheet of NPO of club, balance sheet of club, ये club इसलिए बोल दिया क्योंकि ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, मैच फंड 75,000 लायबिलिटी में शो होता है, तो मैच फंड को दिखा दो 75,000. उस मैच फंड में से आपने कुछ पैसा या उससे ज्यादा पैसा रिगार्डिंग उस मैच फंड से आपने इन्वेस्ट कर दिया. सो मैच फंड इन्वेस्ट कर दिया आपने 99,000. उस में से आपने कुछ पैसा प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करा दिया 3,000. मैच से रिलेटेड आपने एक्सपेंस किया 10,500. मैच फंड के रिगार्डिंग आपको इंटरेस्ट मिला, डोनेशन मिला. सो डोनेशन आपको मिला 30,000. और जो आपने मैच फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया था 99,000, उसको आप उस पे आपको इंटरेस्ट मिला. सो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड दैट इज 7,500. ठीक. उसके बाद आपने एक और फंड बनाया, परमानेंट फंड. सो परमानेंट फंड कहां दिखाएंगे? लायबिलिटी में. परमानेंट फंड कितना बना? 1,20,000. और उसके पैसे को भी आपने इन्वेस्ट कर दिया. परमानेंट फंड इन्वेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं और सिर्फ फंड होता तो लायबिलिटी. और उस परमानेंट फंड के इन्वेस्टमेंट पे भी आपको इंटरेस्ट मिला. कितना इंटरेस्ट मिला? इंटरेस्ट ऑन परमानेंट फंड आपको मिला 12,000. बस बन गई आपकी बैलेंस शीट 75,000. एक बार मैं देख भी लेता हूं कि मैंने सही किया है कि नहीं, एंड आई होप कि मैंने सही किया होगा. यस, मैच फंड 75 माइनस 30, ये माइनस 3,000 माइनस 10,500 प्लस 30 प्लस 7,500, और ये वैल्यू आ रही है आपकी 99,000. देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि इतना ही पैसा आपने इन्वेस्ट भी कर दिया. और परमानेंट फंड की वैल्यू कितनी है? 1,32,000. इन्वेस्टमेंट में वही इंटरेस्ट ऐड होता है जितना इंटरेस्ट, अगर हम बात करें, जितना इंटरेस्ट हमारा एक्रूड होता है. एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब, ये अगर यहीं पे हम एक लिख देते कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन परमानेंट फंड इन्वेस्टमेंट ₹2,000, और लिख देते एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट रुपीज कितना? 2,500. सो ये दोनों ही इंटरेस्ट, सपोज ये दोनों एडजस्टमेंट होते, क्या होते? एडजस्टमेंट्स. ठीक. तो ये दोनों ही एडजस्टमेंट्स को हम यहां शो करते. अब आपका इंटरेस्ट मैच फंड में पहले कितना था? 7,500. अब आपका एक्रूड कितना हो जाता? 2,500. तो ये हो जाता आपका 10,000. और ये भी वैल्यू 2,500 से बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाती है आपकी? 1,01,500. उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन परमानेंट फंड कितना है? 12,000. उस पर एक्रूड कितना है? 2,000. 14,000 हो जाता
और ये वैल्यू हो जाता 1,34,000। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एसेट साइड, तो एसेट साइड ऐसे शो नहीं होता। मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना है 99, उसमें आप ऐड कर देते एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट पड़ता है। तो कितना हो जाता है ये 2,500, 1,01,500। और परमानेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, आपने किया 1,20,000 और उस पे आप ऐड कर देते एक्रूड इंटरेस्ट 2,000, ये वैल्यू हो जाती है 1,32,000। If there is any kind of the accrued interest on the particular investment, इस सिचुएशन में हम क्या कर देते हैं, उस accrued interest को फंड में भी ऐड करते हैं और उस इंटरेस्ट को हम रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में भी ऐड कर देते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। सो प्लीज note down these solution in your copy properly. And now we completed the today's topic, that is an adjustment of a specific fund, and we can see that how not-for-profit organization shows the specific fund like a tournament fund, match fund, permanent fund or any kind of the other specific fund in the financial statement, especially in the balance sheet of NPO. Okay, so please note down. And I hope today we cleared all the topics very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.